Good morning, students. In previous field lecture we just started the concept, the very important concept of this topic, that is relation. In relation we just started the Cartesian product. Before that Cartesian product, the ordered pair, Cartesian product, and then the relation. Relation is a set which is a subset of Cartesian product of a set, that A and B are non-empty sets. In that relation the image, प्री-इमेज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये सब कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में लिए. ये सब वर्ड्स ये साल ही इंट्रोड्यूस हुए. डोमेन पहले कभी भी नहीं था. रिलेशन ये वर्ड मैथ्स में कभी भी नहीं था. रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब वर्ड्स मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम ये साल में इंट्रोड्यूस हुए. सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब कुछ रिलेशन के टाइप्स देखेंगे. So first is binary relation of a set. Binary relation of a set. So what is called binary relation of a set? So A is a non-empty set, contains suppose three elements, 1, 2 and 3. Then A cross A is equal to, that is all possible ordered pairs. Cartesian product means what? All possible ordered pair of set, that is called as what? Cartesian product. So A cross A, Cartesian product of set with itself, खुद के साथ ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है. सो दिस इज A cross A. 1 1, next is 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, next 3 1, 3 2, ये 3 3. So total number of elements 9 है. यहाँ पर 3 elements है. So Cartesian product is 3 into 3 is 9. So we choose one relation R, contains 1 1, 2 3, 3 2. This is one of the relation. A relation is a set which is a definitely subset of R, A cross A. So R is a subset of A cross A. So this relation is called binary relation. Binary relation of a set. इसको हम क्या कहेंगे? Binary relation of a set. When if A is a non-empty set, then the relation R is called the binary relation of a set, which is a subset of A cross A. So ये जो 1 1, 2 3, 3 2 ये सब इसके सबसेट हैं. यहाँ पर 1 1 है, 2 3 भी है और 3 2 भी है. So this is a subset of A cross A. So this particular relation R is called binary relation of a set. R is a subset of, अगर दो सेट है, R is a subset of A cross B, then this is not called binary relation. ये binary relation नहीं हो सकता, because ये ही एक ही सेट होना चाहिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ होना चाहिए, और उसका सबसेट जो भी है उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन. इसको क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन. वेरी सिंपल कंसेप्ट. A is a non-empty set, then A cross A is the Cartesian product of set with itself. Then R is a relation which is subset of A cross A. That R is called binary relation of a set A. उसको क्या कहेंगे आप? Of a binary relation of a set. बहुत सारे होंगे, कितने भी हम रिलेशन उसको फाइंड कर सकते हैं. 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 3 3 है. ये सब रिलेशन जो भी है वो उसके सबसेट है A क्रॉस A के, और उसी को हम क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन. बट देयर आर सम नोट. फर्स्ट नोट, that phi is a subset of A cross A. Phi is a subset of A cross A. So this phi is called, you see phi is a void relation
void relation of set A. इसको हम क्या कहेंगे, void relation और empty relation और null relation. void का और एक वर्ड है empty और null relation, उसको null relation भी कह सकते हैं, because phi R is a subset of A cross A. उसी तरह phi जो empty सेट हर एक का सबसेट होता है, उस रिलेशन का हम क्या कहेंगे, दैट इज वाइड रिलेशन और दैट इज नल रिलेशन और empty रिलेशन. सेकेंड नोट इज व्हाट, every set is a subset of itself. A क्रॉस ए उस कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही होता है, बट उस सेट में एलिमेंट नहीं होते, उस सेट में ऑर्डर्ड पेयर होते, एंड दैट ऑर्डर्ड पेयर इज आल्सो एलिमेंट. उसको हम एलिमेंट ही कहेंगे, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है. सो ए क्रॉस ए दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी एक सेट है, उसका सबसेट इटसेल्फ भी होता है. सो ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. सो दैट्स व्हाई दिस ए क्रॉस ए इज कॉल्ड universal relation of set A. सो मेन कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज बाइनरी रिलेशन, उसके दो नोट है, empty relation and itself relation set is a subset of itself. That two relation is called as void relation, empty relation, null relation, and second is called as what, universal relation respectively. But this is the concept of binary relation. ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसका ए क्रॉस ए जो भी है, उसमें जो भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे उस रिलेशन को हम कहेंगे क्या, बाइनरी रिलेशन ऑफ सेट. इज इट क्लियर? दिस इज वन मोर कंसेप्ट. ओके, so let us see the next concept after binary relation on a set A. The next is identity relation on a set A. So next is identity relation. बहुत ही स्मॉल कंसेप्ट है, आइडेंटिटी रिलेशन. वही एग्जाम्पल को हम कैरी करेंगे. ये इज अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट, कंटेन 3 एलिमेंट 1 2 3. सो दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ इटसेल्फ. 3 elements, that's why Cartesian product is 9. Then we define a relation, we consider a set, definitely A cross A, 1 1 2 2 3 3. So R is a relation, is a set which is subset of A cross A. This R, this relation R is called आइडेंटिटी रिलेशन. इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए. उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए. केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो भी एलिमेंट है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, वो सेम है, 1 1 2 2 3 3. एक्चुअल व्हाट, आर इज अ सेट कंसिस्ट दोज एलिमेंट ए कॉमा ए such that A belongs to A, and this relation is called identity relation of a set A, on a set A. 1 1 2 2 3 3. अगर वही रिलेशन हमने लिया, वही एक सेट लिया, ऑर्डर्ड पेयर सेम सेम है, 1 1 2 2 3 3. सो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट A. So definition is what, A comma A such that A belongs to A. दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए. Then this R is called identity relation on set A. Very very simple concept. First is binary relation, उसमें void relation था, universal relation था. अब ये कौन सा relation है, identity relation. Is it clear? So look at this. Copy it. You will get the correct idea. Okay. Next. Next types of relations. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. कुछ और टाइप्स रिलेशन के. बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट विल टेक अ सेट, ए सेट. वही सेम एग्जांपल लेंगे, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 1 2 3. उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ भी डिफाइन करेंगे.
जो अभी मैंने लिखा था यहां पर वो डिफाइन भी किया था, दैट इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3. ये all possible ordered pairs of a set that is called as the Cartesian product. So अब मैं पहला एक टाइप्स डिफाइन करता हूं. ये इज नॉन एम्प्टी सेट. पहला रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव which relation is called as reflexive relation. This relation consists 1, 1 2, 2. ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता बिकॉज यहां पर 3 3 नहीं है. बट दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज दिस रिलेशन कंसिस्ट इफ A comma A which belongs to R such that A belongs to A. This relation is called as what? Reflexive relation. Every reflexive relation is identity relation, but identity relation reflexive होना जरूरी नहीं है, because this is R definitely subset of A cross A. ये A cross A का सबसेट है. उसमें दो ही एलिमेंट है. एक पहला ऑर्डर पेयर 1 1 है, दूसरा 2 2 है. 1 1 2 2 ऐसा रहा, एटलीस्ट 1 1 भी रहा तो भी चलेगा. उसको हम उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए. This relation is called as what? Reflexive. Second type, symmetric. Which relation is said to be symmetric? Look at the example. I repeat one more relation we define here. ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक कौन सा होता है? देखो यहां पर 1 2 है और 2 1 भी है. 1 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3. उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे. बिकॉज ऑफ व्हाट? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज, दिस इज इंप्लाइज बी ए also belongs to R. बी ए भी उस रिलेशन सेट में होना चाहिए. ये भी अगर रिलेशन R में है तो बी ए भी R में होना चाहिए. देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? सिमेट्रिक रिलेशन. उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक. ये उसका एक एग्जांपल है. बहुत रिलेशन ऐसे हो सकते हैं. देखो एक रिलेशन है R विच कंटेन्स 2 3 एंड 3 2. 2 3 3 2. 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है. So that is not a symmetric relation. So this is what? Symmetric relation. Means what? A is related with B, which implies B is related with A. That is A comma B belongs to A. That is A comma B belongs to A. So this relation is called what? These two examples are called what? Symmetric relation. ये कौन सा है? Reflexive relation. 1 1 2 2. और इसका और एक लिख सकते हैं, that is what? 2 2 2 2 and 3 3. ये कौन सा रिलेशन है? Reflexive relation. Number third relation, that is transitive. ट्रांजिटिव रिलेशन. उस रिलेशन को हम किस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे? ये इज अ नॉन एम्प्टी सेट. दिस इज ए क्रॉस ए, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ ए. सो वी डिफाइन अ रिलेशन आर
that contains 1 2 2 3 1 2 2 3 and 1 3 also 1 2 2 3 then 1 3 also 1 2 2 3 and 1 3 also. So this relation is called what? Transitive relation. So एक definition कैसे होंगे? If A B belongs to R, B C belongs to R, A B belongs to R, B C belongs to R, which implies AC also belongs to R. And where A B C belongs to A, 1 2 3 वो A सेट में होना चाहिए. That is A is related to B, B is related with C. This implies A is related with C, where A B C belongs to capital A set A. This relation is called transitive relation. ये कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन. सो एक एग्जाम्पल है 1 2 2 3 1 3. अब इसको क्या कर सकते हैं? और एक यहां पर डिफाइन करता हूं मैं. देखो 2 1 है, 1 3 है, 2 1 1 3. So we write 2 3 also. We write what? 2 3 also. This all three elements definitely सब elements subset of A cross A. देखो 2 1 भी है, 1 3 भी है and 2 3 भी है. So this relation is called as what? Transitive relation. So reflexive, symmetric, transitive. ये 3 टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये डेफिनेशन है और ये उसका एग्जाम्पल है. ये पहला रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, symmetric and what? This is what? Transitive relation. Okay, so these three relations which are called types of relation, that is very very important. Reflexive किसे कहते हैं? सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए. ये एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, 1 1 तो होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, उसमें से 2 होना चाहिए, तीनों भी चलेगा. बट नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं. बट आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज व्हाट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन मींस व्हाट? 1 1 2 2 3 3 जितने हैं उतने सब उसके सेम. उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी. बट वो रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली है. सिमेट्रिक कैसा होता है? इफ ए इज रिलेटेड विथ बी, then B definitely related with A होना चाहिए. So this relation is called as what? Reflexive relation. और लास्ट कौन सा है? ट्रांजिटिव रिलेशन. अगर A रिलेटेड विथ B है, B रिलेटेड विथ C है, तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए? C होना चाहिए. सो इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम? ट्रांजिटिव रिलेशन. सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन. और ऐसे कुछ सेट होते जो डेफिनेटली तीनों भी होते. मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं. देखो R एक रिलेशन है, उसमें 1 1 है, 1 2 2 1 है, 2 3 भी है और 1 3 भी है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. ऑब्जर्वेशन करो. अगर ये एग्जांपल दिया है, आपको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है ये रिफ्लेक्सिव है क्या? है. 1 1 है उसमें. सिमेट्रिक है क्या? देखो 1 2 2 1 है, 1 इज रिलेटेड विथ 2, 2 इज रिलेटेड विथ 1. सो ये सिमेट्रिक भी है. और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. देखो कहां पर है? 1 is related with 2, 2 is related with 3,
So 1 is related with what? 3. So this relation is called as what? Transitive also. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, that relation is called as what? Equivalence relation. इसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन. इज इट क्लियर? इसे इक्विवेलेंस क्यों कहेंगे? बिकॉज ये तीनों भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन. ये टॉपिक की ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रिपीट एक्सप्लेन करता हूं. रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? ये 3 एलिमेंट है. इफ 1 इज रिलेटेड विथ 1, 2 इज रिलेटेड विथ 2 or 3 is related with 3, this relation is called as what? Reflexive relation. Symmetric किसे कहते हैं? If 1 is related with 2 and 2 is related with 1, this relation is called as what? Symmetric relation. And third, transitive. If 1 is related with 2, 2 is related with 3, then 1 should be related with 3. So this relation is called as what? Transitive relation. और ये जब तीनों भी है तो उसको ये दिस इज एग्जाम्पल. ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है. अगर इसको हम अच्छी तरह से कॉपी करोगे तो ऑल 3 कंसेप्ट विल बी क्लियर. अगर तीनों भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ओके, सो टुडे इज सफिशिएंट फॉर दिस थ्योरी लेक्चर, बिकॉज हमने आज बहुत सारी कंसेप्ट लिए. पहला बाइनरी रिलेशन लिया है. बाइनरी रिलेशन में उसमें वाइड रिलेशन भी था और एक कौन सा था? यूनिवर्सल रिलेशन भी था. सो यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन आर टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन. उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन हुआ. आइडेंटिटी रिलेशन के बाद ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन लिए: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन. और वो जब तीनों भी रहेंगे तो ये क्या हो? इक्विवेलेंस रिलेशन. सो दिस इज अ इनफ theoretical study for today's video lecture. We will see actual examples on a relation on next video lecture. So today I will stop here. Thank you very much.